Yes, anyone? Sir, reconduct exam is only option. You are from can you please tell me the center or state of which you are given exam? Mr. Gaurav Agrawal, please. Sir, Delhi state. You are from Delhi state. Can you please tell me the how many centers has uh, done miss malpractices there? Sir, many center has no वो कंप्यूटर भी अवेलेबल नहीं थे सर. और सर वो बीच बीच में वो स्क्रीन ऑफ हो जा रहा था सर. और अच्छा. डिस्कशन हो रहा था स्टूडेंट के बीच में ड्यूरिंग एग्जाम. Oh, that's horrible. Or Hello, yes, yes. Akhil Chaudhary. Yes. sir. I am from Noida Center, sir. Sir, there is an invigilator who even don't know that the student sitting in the uh, lab 3 has not their roll number in lab 3. They have their roll number in lab 4. And I at my sitting position, the student sitting is of another room. And the invigilator don't know about the roll number of that person, and he seated him on my seat. So these type of things were Oh, also happening. oh, 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 oh. Means mismanagement has been shown there. Yes, sir. Okay. I get Delhi point and another anyone from another state. Sir, I'm from Andhra Pradesh. In my Yes. center, there was no problem about conducting the exam. They were really very strict, and the systems are worked well. But when I came to notice that my friend's center in Guntur, all of my college mates, they were seated not accordingly to the roll number in one row wherever they want, and they discussed the entire question paper. I got almost all 60 questions correct. They got 75 to 80 questions correct after coming out of the examination. Oh, And I never saw a single day of them studying a whole year. oh, that's also too much horrible. Ma'am, आंध्रा के और कितने सेंटर हो गए कि वहां पे ऐसा कुछ हुआ है मिसकंडक्शन बता My सकते notice हैं? there are only, in my area near Guntur, Vijayawada, there are 3 to 4 centers like this Hmm. in my notice. Okay, But okay, there okay. may be more than 3 or 4 also. Yes. Okay. Definitely we will take action and we will get justice, ma'am. Don't worry about Thank you that. so much, I sir. am drafting. I am drafting on it. We will send through it PCI and MSPC, and I request every state students to mail your Maharashtra State Pharmacy Council also. Sorry, State Pharmacy Council also. Actually, I am from Maharashtra. That's why it is. So I will send you draft to demand to take strict action and inquiry on these misconducting centers. And another, can you please tell me anyone from another state other than Delhi, Andhra? Please, anyone from another state where misconduction of exam has been done? Hello, sir. Yes, yes, yes. Sir, can we file RTI form against NTA? No, no. RTI is right to information. We don't need information. Yes, sir. Yes, sir. We want that CCTV footage from NTI. Yes, we will take that. If we are demanding for this inquiry, they will take everything. CCTV footages, they will check CCTV footages and they will inquire of each and every center. Just we need those centers. We also need those centers which have conducted Sir, misconduction of but NTA is not responding to us. Then we have just option to file RTI. yes, Not just don't worry. RTA. I think PIL should be filed for this. Yes, sir. PIL also an option.
Okay, we will think on it also. Actually, we have very less time. We have to take action before result. After result, we cannot do anything. That's why we will take at any how cost. We will pressurize National Testing Sir, Agency, we will direct file PIL in a high court. but we don't have proofs, sir. We need proofs, Sir, valid proofs. sir, we have to get proofs from RTI. We are live Sir, witnesses, sir. RT has rules that they will give. They have to give answer within 28 days. If they will give answer after result, it is so we have to pressurize them politically and administratively first, and then we will go through High Court. Yes, sir. Do you understand what I'm saying? That मतलब Yes, ये sir. जो Yes. आरटीआई जो है ना, उनको 28 दिन में रिप्लाई देना होता है. अगर 28 दिन में रिप्लाई दिया उन्होंने, सीसीटीवी आने में उनको भी देर लगेगी वो कलेक्ट करने में, तो अगर वहां तब तक तो हमारे रिजल्ट लग जाएगा. अभी तो 4 दिन निकल चुके, बराबर है ना. Yes, sir. So we will pressurize them administratively and politically. If 50% of 50% of state pharmacy councils send letter to PCI and NTA, they will definitely take action. And I will take सर ये very. I will, ट्विटर से और मेल से कुछ फर्क नहीं पड़ रहा उनको. नहीं सर, ये आपको करना है. हम पूरे एडमिनिस्ट्रेटिवली, मतलब जो स्टेट काउंसिल का जो रिप्रेजेंटेशन होता है, आपके पूरे स्टेट के फार्मासिस्ट का रिप्रेजेंटेशन होता है स्टेट फार्मेसी काउंसिल. इफ दे सेंड एनी लेटर, दे हैव टू टेक एक्शन. दे मस्ट टेक एक्शन. उनको बाइंड होता है कि उनको एक्शन लेना ही पड़ता है. अगर हम राइटिंग में लेटर अपने स्टेट काउंसिल से भेजे, और अब हम पूरे स्टूडेंट आज एक मूवमेंट चलाने वाले हैं पूरे ट्विटर और ईमेल पे. एक thousands of mail should be sent to the NTA and Maharashtra central government secretary of higher and technical education, and HRD minister also, and PMO secretary. I will send draft and emails IDs of those concerned departments. I guarantee it. We will get justice. Just don't worry about that. I just need how many states misconducting these exams. Any other state from Andhra Pradesh? Please speak. If you speak, then we can. We will send this recording to uh, NTA also. How many states have misconducted these exams? Hello, sir. Please. Yes. Yes, sir. I am from Gujarat. So at my center, we get to know that there was no enough computers. We asked to stand in the lane, and then उन्होंने बोला कि जहाँ जगह मिलती है आपको वहाँ पे बैठ जाओ. So there was no proper arrangement and environment, and which leads our focus down regarding the exam. And at my friend's center, people are playing games on the computer during the exam hours. So no Oh, proper management was there. okay. Sir, I request you that Mr. PCI president is from your state. Yes, sir. So if I will send you draft on our channel. So please send emails to your state pharmacy council and our PCI president also. I will send their email ID also on our channel. Okay. Okay, sir. You just show if you have proofs, then we will attach to that draft. Okay. Okay, sir. Just don't worry about that. Any other state? Gujarat, Andhra Pradesh, Delhi, Maharashtra. Any other? Sir, we can't hear. Hello. Who is speaking? Him. Uh,
Anyone speaking? Hello? We can't hear. Yes, Vaishnavi. Pharma Mind, please speak. Please speak. Any other state students? UP, Bihar, MP, Tamil Nadu, Kerala. Any students? Hello, sir. Yes, Arshin. Yes. Yes, sir. So it is very disheartening to know that this has happened because I think ऐसा पहले कभी हुआ नहीं होगा कि एग्जाम में इतना माल प्रैक्टिसेस हुआ है स्टार्टिंग फ्रॉम द सेंटर की अलग जगह पे लगा है. आई विल गिव यू माय एग्जांपल सर. मेरा फर्स्ट प्रेफरेंस कुछ और था लेकिन मुझे लगा नई मुंबई. इट वाज फाइन, सेंटर वाज फाइन, कंप्यूटर की कोई प्रॉब्लम नहीं आई, कुछ प्रॉब्लम नहीं आई. अभी ऐसा है ना सर कि हम लोग एग्जाम देख के हम लोग अभी मूव ऑन करना चाहते थे. एक एग्जाम हो गया, उसके बाद मुझे दूसरे एग्जाम पे फोकस करना था और अभी ऐसी चीजें हो रही है कि फिर से कंडक्ट करना है तो माय माइंड इज गोइंग अगेन वॉन्डरिंग अराउंड द सेम थिंग सर. सो आई डोंट, इट इज नॉट, आई डोंट नो सर, इट इज वेरी डिसहार्टनिंग ऑल्सो एंड ऐसा लग रहा है कि ये डिजर्विंग चीज नहीं है कि हमको उस चीज के लिए वापस ये करना पड़े बिकॉज मेंटली वी हैड मूव्ड ऑन फॉर 1.5 day ऑल्सो. आई नो इट साउंड्स लेस बट आई हैव डिफरेंट एग्जाम्स ऑल्सो टू प्रिपेयर एंड मोर ओवर अभी अगर एनटीए वापस एग्जाम भी लेता है तो वो कब लेगा? वो मेरे दूसरे एग्जाम्स के साथ क्लैश हो गया. आई एम श्योर आई एम नॉट द ओनली वन हु इज wanting to give other exams also. There are many other private universities also. Many people, many candidates want to give. Sir, वो उसके साथ clash हो गया तो. And sir, अभी पर्सनली दूसरे भी चीजें होती है जो हमारे लाइनअप में है. अब वो एग्जाम अगर वो फिर से कंडक्ट होता है, वी हैव टू ओपन दोज बुक्स अगेन, वी हैव टू कैंसिल एवरीथिंग एंड जस्ट सिट देयर एंड यू नो डू अगेन. सो इट इज वेरी डिसहार्टनिंग सर. आई जस्ट होप कि एक अच्छा डिसीजन हो जिससे जिन्होंने सच में जेन्युइनली मेहनत की है और उनको उसका जस्टिस मिले एंड आई डोंट नो सर, बस जिन्होंने मेहनत की है उनको अपना उनके लिए राइट डिसीजन हो सर. क्योंकि हम बस एग्जाम दे के निकलना चाहते थे एंड ये सब चीजें हो रही थी, दूसरे स्टेट्स में हो रही थी, इसका किसी को कुछ आइडिया ही नहीं था. थैंक यू सर. इसीलिए हमने ये सेशन लिया है कि हर स्टेट में हुआ है कि नहीं. हम पहले ये कंफर्म करना चाहते हैं कि अगर ये हर स्टेट में कम से कम 5-6 सेंटर पे अगर ऐसा होता है तो हार्डवर्किंग स्टूडेंट को इसका जस्टिस मिलना चाहिए. ये आपने भी कहा है, लेकिन आप जो बोल रहे हैं कि आपने अदर्स जो भी एग्जाम से मूव ऑन करना है आपको, लेकिन आपका कैसे मैडम, आपने अगर पढ़ाई की हो तो आप कब भी एग्जाम दे सकते हैं. ठीक है, अगर एग्जाम का कुछ भी हुआ, ठीक है, अगर उन्होंने फिर से रिकंडक्ट भी किया और या कुछ सेंटर्स पे इंक्वायरी करके उसी बच्चों का भी एग्जाम लिया तो ऐसा कुछ हो नहीं सकता. क्योंकि इसमें इनजस्टिस होगा जो हार्डवर्किंग स्टूडेंट है. क्योंकि अभी तुमको अगर एक कुछ भी रैंक लाना होगा तो आपको कितने मतलब 4-4 साल से मेहनत करते हैं आप. जीपैट की एग्जाम के लिए आप क्लासेस लगाते हैं, रात दिन मेहनत करते हैं. लेकिन अगर कोई कॉपी वाला बच्चा आपको कॉपी करता है और वो स्कोर लेता है, एक इंटेलिजेंट बच्चे से ज्यादा कॉपी करके स्कोर लेता है, वो ये जो मास कॉपी के प्रकार ये है टाइप से, ये बहुत टेक्निकली वो भी बहुत स्मार्ट होते, तो आपको वहां पे इनजस्टिस मिलेगा, आपका रैंक भी कम आ सकता है. ठीक है, तो ये भी चीजें है उसमें. लेकिन हम ऐसा नहीं बोलेंगे कि रिकंडक्ट एग्जाम या फिर स्टे, ऐसा अगर उनको बोला तो वो डायरेक्टली कुछ भी एक्शन नहीं लेंगे सेंटर पे. तो पहले हम डिमांड करते हैं कि वो सेंटर्स और जो स्टूडेंट ने मास कॉपी किया है उनके ऊपर कार्रवाई होना चाहिए. जो सपोर्टिव स्टाफ है उनके ऊपर भी कार्रवाई होनी चाहिए. क्योंकि अगर हमने अभी कुछ भी उनको शो नहीं किया तो ये चलता रहेगा, ये हर साल चलता रहेगा. और उसी दिन 9 अप्रैल मुझे कुछ बच्चों ने बताया कि उसी दिन सीमैट का भी एग्जाम था, एमबीए का भी एग्जाम था. अभी बहुत सारे बच्चे हैं कि उनको दोनों भी एग्जाम देने थे एमबीए के लिए, एमबीए का भी और जीपैट का भी. वो दोनों भी एग्जाम वो ये नहीं कर सके, अटेंड नहीं कर सके. कोई तो भी एक एग्जाम अटेंड किया है और
दूसरी चीज ये है कि हॉल टिकट टाइम पे आ गए, 2 दिन के पहले। ये साइकोलॉजिकली डिस्टर्ब हो सकते, आप रिजर्वेशन कब करोगे उसका? आप आप अगर कोई प्रॉपर सिटी में सेंटर होगा तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन कुछ बच्चे ऐसे हैं जो रूरल से आते हैं, कुछ फार्मर के बच्चे हैं, कुछ मिडिल क्लास की फैमिली के बच्चे हैं, वो इतनी दूर से 400 500 किलोमीटर उनको ट्रैवलिंग भी करना पड़ा है। सो उन्होंने चॉइस ऑफ सेंटर्स भी फर्स्ट टू लास्ट ऑप्शन पे, लास्ट ऑप्शन का सेंटर चॉइस दिया है। ये गलत है ना? तो फिर तुमने आपको अगर वही सेंटर देना था तो प्रेफरेंस काय को दिया? फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ नहीं देना था, 4 2 थर्ड 3 1 देना था, है ना? हेलो सर। तो ये ऐसे भी कुछ चीजें हैं, बोलो सर। अभी अभी जो आपने पॉइंट बोला, सेम पॉइंट मैक्सिमम स्टूडेंट के साथ हुआ है। हम जब फॉर्म भरते हैं तब 4 ऑप्शन देते हैं कि मुझे ये सेक्शन, मतलब ये सेंटर फर्स्ट पे चाहिए, सेकंड पे चाहिए, थर्ड पे चाहिए। बट एक्चुअली मैंने 2 दिन पहले एक लिस्ट देखी जिसमें कम से कम 1000 से 1200 ऐसे लड़के हैं जिनको वो 4 सेंटर में से तो कोई सेंटर मिला ही नहीं, अलग ही सेंटर मिला, और वो भी 2 दिन पहले पता चला। तो मतलब बराबर, कैसे करेंगे सर? इट्स नॉट मतलब चारों में से भी, चारों चारों सेंटर में से भी सेंटर नहीं मिला। चारों में से भी नहीं मिला, और इनके एग्जाम में 1000 लड़के हैं, इनकी सो ओके, श्योर, आई विल नोट दैट पॉइंट ऑल्सो। इसका करना चाहिए कुछ भी। यू आर फ्रॉम विच स्टेट सर, जावेद सर? सर मैं महाराष्ट्र से हूँ। Okay. Other than Maharashtra, anyone state pharmacist is there? Please speak. Hello, Yes. I'm from MP. Yes. सर हमारे यहाँ भी है ना, कंप्यूटर की सारी दिक्कत थी सर। कंप्यूटर प्रॉपर नहीं थे किसी के लिए, और वहाँ पे बहुत सारी मॉनिटरिंग वगैरह हो रही थी, और ये सब प्रॉब्लम हमारे यहाँ भी थी। From which state you are, ma'am? MP, MP. Which Indore or Bhopal center? ग्वालियर। Gwalior. Okay. We'll note that. Any other from MP? केरला, कर्नाटका, क्योंकि आप जो जिन स्टेट के नाम लोगे वो आपके स्टेट के इंक्वायरी एनटीए 100% करने को लगाएंगे हम। यू विल डेफिनेटली ट्राई। यस श्रीनिवास सर। एनी अदर फ्रॉम, anyone from any other state? UP? I hear many complaints from UP also, but no one is speaking here. I request each GPAT class directors to aware our student to take immediate action on NTA conducting exam centers. Anyone from any other state? हेलो सर, गुड आफ्टरनून। Yes. सर मैं उड़ीसा से हूँ। Yes. सर वहाँ ये मेरे सेंटर पे भी यहाँ ऐसा हुआ था सर, वो कंप्यूटर की कमी थी वहाँ पे। स्टूडेंट्स मतलब जिसका जो रोल नंबर था वो उसी सीट में नहीं बैठा था, मतलब जहाँ पे कंप्यूटर रीअरेंजमेंट हुआ था वैसे ही हुआ था, और स्टूडेंट्स भी काफी डिस्कशन कर रहे थे, इन्विजिलेटर भी नहीं था कोई, तो यहाँ पे भी ऐसा हुआ सर। From which state you are, sir? आई एम फ्रॉम ओडिशा। ओडिशा मीन्स ओडिशा में हाँ भी हुआ है। ओके हाँ ओके, नोटेड सर, थैंक यू। यस हेलो यस हेलो सर, ये यस। छत्तीसगढ़ में भी हुआ है मेरे सेंटर में। चीटिंग एंड इन द सेंस मोबाइल से तो नहीं हुई है, बट सब लोग ग्रुप डिस्कशन करके तो आंसर लिख रहे थे। जहाँ तक मुझे पता है, मेरे मेरे लैब में तो नहीं हुआ था, बट मेरे लैब में कंप्यूटर्स की कमी थी। एंड जब जब कैंडिडेट आ रहे थे उसके बाद उन्होंने इंजीनियर को बुलाया कि उसको रिपेयर करने के लिए कंप्यूटर्स को, और तब भी नहीं हुआ। उसके बाद एटलीस्ट आफ्टर 9:30 बजे के बाद उनको शिफ्ट किया गया दूसरे लैब में।
और जो कंप्यूटर लैब थे वो जो सिंपल लैब रहते जैसे स्कूल के कॉलेज के लैब रहते वैसे ही थे, कुछ मतलब ऐसे एग्जाम बेस के हिसाब से वो कुछ लैब नहीं थे। मतलब कोई भी किसी का भी कंप्यूटर स्क्रीन विजिबल था सब जगह से। और पर्सनली मुझे मेरे टीचर ने जो वहाँ पे थे उन्होंने 15 मिनट्स पहले ही मुझे एग्जाम एंड करने के लिए बोला था। तो मैंने उन्हें बोला कि मेरी स्क्रीन में तो अभी 15 मिनट्स रिमेनिंग दिखा रहा है, आप मुझे कैसे बोल रहे हो। तो भी उन्होंने मेरे को 2 से 3 बार डिस्टर्ब किया। फिर मैंने बहुत अच्छे खासे जोर से बोला था कि मेरा जब टाइम होगा तो मैं अपने से बंद कर दूंगी, अभी मेरा टाइम नहीं हुआ है, तो आप चले जाओ यहाँ से। उसके बाद वो जाके बैठी अपने जगह पे। ओहो हो। ये तो बहुत सीरियस इशू है, मतलब आपको टाइम बाकी होते हुए भी उन्होंने आपको डिस्टर्ब किया। जी, मेरा 15 मिनट बचा था, उन्होंने कहा कि एंड करो एग्जाम, एंड एग्जाम पे क्लिक करो करके। तो मैं बोला कि अभी तो 15 मिनट्स रिमेनिंग है, आप मुझे कैसे बोल सकते हो। तो उन्होंने बोला कि नहीं, सामने के लोग कर रहे तो उन लोग तो कर रहे। तो मैं बोली सब अपने अपने टाइम पे स्टार्ट करते, हो सकता है मैंने बाद में स्टार्ट किया होगा, तो मेरा तो 3 3 घंटे तो तभी एंड होगा ना। तो करेक्ट सर करेक्ट ये करेक्ट। था। तो हाँ, तो सर मैंने अपने टाइम पे तो मैंने पूरा 3 घंटे लिया था, बट उन्होंने डिस्टर्ब मेरे को किया था। हम्म। बस यही है। और सब स्क्रीन तो विजिबल थी और मेरे पीछे लोग थे, तो मुझे नहीं पता कि अब किसने कितना मेरा कॉपी किया होगा। मैं तो अपना 1 साल पूरा दे के पढ़ी हूँ। अब कौन पढ़ के आया कौन पढ़ के नहीं आया वो तो मुझे नहीं पता है। और बीइंग बराबर। मेरा जो सेंटर में था तो मेरे कॉलेज के बहुत सारे लोग थे, मतलब मेरे कलीग्स थे बहुत सारे, तो उन्हें पता है कि मैं अच्छा पढ़ती हूँ, तो शायद उन लोग ने चीटिंग किया होगा पीछे वाले लोग, तो मुझे नहीं पता। अच्छा। जी सर। और मैम आप किस स्टेट से हो? जी सर, छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़, यू आर फ्रॉम छत्तीसगढ़। यस सर। ओके। यस यस। थैंक यू। कैन यू मतलब छत्तीसगढ़ में ऐसे कितने सेंटर है कि जो आपको पता चला कि वहाँ पे कुछ ना कुछ गड़बड़ी हुई है? सर देखिए, मेरा सेंटर, हाँ। मेरे फ्रेंड्स लोग को तो एक रायपुर मिला था, एक फ्रेंड को तो रायपुर मिला था, मेरा भिलाई था छत्तीसगढ़ में। तो हम्म हमारे सेंटर में तो हुई है कि उन लोग ग्रुप डिस्कशन करके एग्जाम दिए। मोबाइल वोबाइल का तो मुझे पता नहीं है, अभी तक पता हम्म नहीं लगा कि मोबाइल अलाउड था। बट हाँ, हम्म। बॉयज लोग बोल रहे थे कि हम लोग तो हाँ एक दूसरे को पूछ के कर रहे थे। हम लोग तो ग्रुप बना के बैठे थे ऐसे, क्योंकि सब एक ही कॉलेज के थे ना, सब फ्रेंड थे, सब बराबर। कलीग थे, सब लोग को सेमी सेंटर मिला था। तो हाँ, ये अच्छा। हुआ था। और रायपुर वाले भी बोल रहे थे, रायपुर में जिनको सेंटर मिला है, तो मेरे मेरे नॉलेज में तो अभी 2 ही है फिर, भिलाई एंड अच्छा। रायपुर। यस यस। मैम मैं एक ड्राफ्ट मैंने बताया अभी कि सबको कि मैं ड्राफ्ट भेजूंगा, तो आपको अपने मार्क्स मैं जो ईमेल्स आपको दूंगा और आपके जो स्टेट फार्मेसी काउंसिल है उनको भी आपको उसमें लेना है, वो उनको भी आपको ईमेल्स करना है। आई नीड एटलीस्ट 100 to 500 emails or any, मतलब can you please aware your students from Chhattisgarh? ओके सर, आई विल ट्राई माय Yes, बेस्ट। please aware that the students to send email. We have to pressurize the NTA. यस सर। Okay. Yes. ओके, थैंक यू सर। Yes. Thank you. सर, हेलो Yes. सर। सर Yes. कंप्यूटर की इनसफिशियंसी तो ये कंप्यूटर की इनसफिशियंसी और मास कॉपी और सर वो डिस्कशन वो सही जगह सभी जगह था सर, ऑल ओवर इंडिया। बट एमआईटी पुणे में क्या हुआ सर, एग्जाम लेट चालू हुआ, मीन्स अबाउट 10 बजे चालू हुआ। तो फिर क्या हुआ ना सर, उन्होंने बायोमेट्रिक नहीं किया सर बहुत से स्टूडेंट का, और जब एग्जाम एंड हुआ तभी उनका कुछ कैमरे का प्रॉब्लम था। फिर भी सर वो जितने अबाउट 25 स्टूडेंट्स थे मेरे बाजू के लैब में सर, उन सबका सर बायोमेट्रिक बाकी है। मीन्स उन्होंने एग्जाम दिया फिर भी उनकी अटेंडेंस नहीं लग सकती सर। अरे बाप रे। हाँ सर। मुझे रुपेश सर, आफ्टर वीडियो चैट वो बच्चों से मेरी बात हो सकती है, या फिर वो हाँ बच्चे कुछ सर, है? एक लड़की है सर, मैं उसको आपकी बात करवाता हूँ सर। यस श्योर। ओके सर, श्योर। और कुछ ऑडियो रिकॉर्डिंग वगैरह करे तो भी चलेगा, क्योंकि हमको उनको ये जो प्रूफ है, ये प्रूफ हमको उनको देना है। ठीक है। एनीवन फ्रॉम एनी अदर स्टेट? Good afternoon, sir. यस आदर्श। Sir, I am from Karnataka. In my center also, everyone discussing and all, and group discussion is happened over there, sir. Everyone cheating and all. No invigilators will be there. No strict.
everyone copying, sir. Oh. Anyone video? Do you have proof of that? Sir, no mobile carry नहीं कर सकते थे ना, so no video we have done. अच्छा, कुछ सेंटर का वीडियो अगर आया होगा तो शेयर करना हमको, ठीक है? वीडियो या फोटो। Okay, sir. Thank you. Yes, thank you. Any other state? Tamil Nadu, Kerala, Tripura. Yes. Sir, at my center also the people were discussing and marking the answers. Means the people who were sitting besides me, they were discussing and marking. So it was disturbing me and I couldn't focus on my paper. And the exam started after 9, not exactly at 9. Can you please repeat? Hello. सर मेरे से आपकी आवाज बहुत कम आ रही मैडम। यस प्लीज। हेलो मैम, प्लीज स्पीक अगेन। एनीवन फ्रॉम एनी अदर स्टेट? वी हैव अपना अभी अगर कुछ इसका निष्कर्ष निकाले, लास्ट कंक्लूजन निकाले तो यस तुषार पाटिल। यस सर, हम सेंट्रल गवर्नमेंट को दोष नहीं दे सकते का, क्योंकि पिछले 1-1.5 साल से सेंट्रल गवर्नमेंट कौन सी भी एग्जाम अच्छे से नहीं ले रहे सर। अभी 2-3 महीने सर नीट का एग्जाम हुआ, बोलते नीट का पेपर फूट गया, जेई का पेपर हुआ, जेई का पेपर रहेगा। मतलब ऐसे होता रहेगा तो सर बच्चों का नुकसान कितना होता है हर साल। जो लड़का 1 से 2 साल से इतना मेहनत करता है तो फिर क्या मतलब सर पढ़ाई करने का हम जैसे स्टूडेंट का। अगर ऐसा ही होता रहा फ्यूचर में भी और आगे, तो फिर कुछ नहीं हो सकता ना फिर हमारा सर। बराबर करेक्ट। नहीं, कभी कैसा होता है कि हम अगर यूनाइट हो, हम अगर अपने जो प्रॉब्लम्स है, जो एग्जाम टेस्टिंग एजेंसी जो है उनको अगर बताए तो इस चीज में कुछ ना कुछ बदलाव आ सकता है, अदरवाइज ये बदलाव नहीं आ सकता। इसलिए वी नीड यूनिटी, वी नीड योर बैकअप। आप किस स्टेट से हो सर? सर शिरपुर, महाराष्ट्र। ओके। So we will send emails and tweet also, and I will do draft and send through main authorities also. So don't worry about that. We will go through proper channel only. तक यहाँ तक आ गई थी सर। जो मेरे फ्रेंड ने जो 4 ऑप्शन डाले थे वो तो उसको मिला ही नहीं, मिला ना। जब सिटी अनाउंस हुई तो नवी मुंबई मिला, और जब हॉल टिकट आए 2 दिन पहले तो मिला पुणे MIT मिला। मतलब सबके इश्यूज सेम है, सब सेंटर्स पे ये इशू हुए हैं, ऐसा कंसीडर करेंगे हम। और किसको बात करना है? हेलो सर। यस सर मेरा भी सेंटर का वही प्रॉब्लम है। मेरे सेंटर पे कहाँ से सर आप? महाराष्ट्र। हां, तुमच्या पण सेंटरवरती झालं, ठीक है। हाँ, तो मेरा भी सेंटर पुणे MIT था। ये सब तो प्रॉब्लम हुए थे, लेकिन इसके अलावा हमें 9:30 बजे तक एंट्री करने को, कुछ चेकिंग वगैरह नहीं किया, लेकिन उतना लेट कर दिया। और अंदर जाने के बाद उनको एग्जाम कंडक्ट करने वाले थे ना, उनको ही बार पिन और सर नोटेड। आपका आवाज थोड़ा सा ब्रेक हो रहा है, ठीक है। यस। तो अभी सुबह मैं कुछ बात करना चाहता हूँ आपसे। आपकी सबकी राय जानी है मैंने, हर स्टेट की, कि ये एग्जाम में कुछ ना कुछ मिसकंडक्ट हुआ है। तो मैं आपसे बात करना चाहता हूँ कि सुबह कुछ बच्चों को मुझे कॉल आया कि कुछ सेंटर्स पे अच्छी एग्जाम मतलब डिसिप्लिन से एग्जाम हुई है और बच्चों ने बहुत मेहनत से पेपर भी दिया है।
लेकिन प्रॉब्लम ऐसा है कि उनको लग रहा है कि हमने अगर सीरियसली एग्जाम पढ़ाई करके पेपर भी दिया है, मतलब एग्जाम दिया है और हमारे सेंटर पे कुछ भी नहीं हुआ है, तो हमारा वो वेस्टेज ऑफ टाइम होगा उस दिन का, या कुछ तो भी हमको भी कुछ अदर एग्जाम्स की भी तैयारी करनी होती है। लेकिन बच्चों एक बात बोलूं, आप पढ़ाई करेंगे, आप एग्जाम देंगे, और अगर हम इस पे कुछ भी इंक्वायरी नहीं लेंगे, बैठाएंगे, कुछ कार्रवाई नहीं करेंगे, एनटीए को कुछ भी ये बोलेंगे नहीं, तो आपकी मेहनत या आपका रैंक आने से भी मतलब आप पीछे आ सकते हैं। क्योंकि ये कॉपी वाले बच्चे वेरी टेक्निकली स्मार्ट रहते हैं और उनका पूरा प्लानिंग रहता है। तो आई होप कि तुम हार्डवर्किंग स्टूडेंट्स पे मतलब ये जो है ना अन्याय है, हाँ सर, जिन इनजस्टिस है। लोगों ने पढ़ाई की है वो तो कभी भी एग्जाम दे सकते हैं ना, लेकिन जो स्टूडेंट 1-2 साल से मेहनत कर रहे हैं और ऐसे स्टूडेंट की वजह से उनका नुकसान हो रहा है, तो फिर इस चीज से क्या मतलब? जिन्होंने पढ़ाई की है वो कभी भी Yes, पेपर दे sir. सकते हैं। Yes, sir. बराबर, यस यस, बरोबर. हर्षिन मॅडम बरोबर. येस सर, सॉरी फॉर डिस्टर्बिंग यू. यस यस. सर तर मग मी शिरपूरहून बोलतोय सर, आरसी पेपर शिरपूर महाराष्ट्र. हिंदी बोला, हिंदी. हाँ सर, तर ओके ओके. तर मग सर अपने पास अभी मतलब क्या ऑप्शन है कि आगे हम क्या कर सकते हैं? हमने अभी एक ड्राफ्ट बनाया है सर, ठीक है. हमारे महाराष्ट्र स्टेट फार्मेसी काउंसिल के प्रेसिडेंट से बात हुई मेरी, ठीक है. वो प्रेसिडेंट साहब रजिस्ट्रार मैडम से एक लेटर तैयार होगा अपने स्टेट हाँ. में, और ऐसा हर स्टेट में कि स्टेट फार्मेसी काउंसिल को हमको डिमांड करना है. आई रिक्वेस्ट ऑल योर टीम, ऑल आवर pharmacists to demand our state pharmacy council and our associations also to take strict actions on those centers. एंड मतलब आप एनटीए पे डिपेंड करेगा कि वो कैंसिल करेंगे या स्टे करेंगे. हम डायरेक्टली रिकंडक्ट ऑफ एग्जाम हम उनको सजेस्ट नहीं करेंगे, क्योंकि वो इंक्वायरी भी होना चाहिए. क्योंकि अभी अगर इंक्वायरी नहीं हुआ और फिर से वो सेंटर अलॉट हुए अगले साल, तो फिर से वो बच्चों को प्रॉब्लम आएगा. हाँ सर, तो सेंटर को तो प्रॉब्लम थी था सर, पर जो कमिटी थी सर अपने एनटीए की, वही कमिटी पागल थी सर. पे एक्शन लो, और वो जो सेंटर्स पे ऐसा कुछ बवाल मचा है या हंगामा कुछ हुआ है, तो वो सेंटर्स को आप ब्लैकलिस्ट में डालो, और वो कैंडिडेट्स को भी ब्लैकलिस्ट में डालो जहाँ भी हुआ है. ऐसा जो करोगे अथॉरिटीज तो उनको शायद सपोर्ट कर रहे हो सर, पर हम ऊपर भी स्ट्रिक्ट कार्रवाई सर पर हम ऐसा कर तो नहीं सकते ना सर, क्योंकि 100 में से 90 सेंटर पे ऐसा ही हुआ है सर. जो सब बच्चे बोल रहे कि हमारे यहाँ, मैं खुद SSVPS धुले में था सर, वो मेरे बाजू में सब बच्चे मेरा देख के मतलब लिख रहे सर, देख रहे ऐसा वैसा, इधर सब मतलब ऑलमोस्ट 90% सेंटर पे ऐसा ही हुआ है सर. तो हम तो सब सेंटर में तो बैन नहीं कर सकते ना. ये प्रॉब्लम तो कमेटी का साथ है, ये साधना पारस्कर मैम ने उनकी गलती सी थी सर, उनकी गलती की वजह से ही ये सब हो रहा है सर. सर हम पहले ही अगर हम सब अलॉटेड कर देते कि हाँ भाई तुम्हारा नंबर, तुम ये नंबर पे जाओ, कंप्यूटर पे बैठो, तो वो मतलब होता ही नहीं सर. ये मॉब में हम सब एक कॉलेज के सब एक ही जगह बैठ रहे हैं, सब बच्चे एक जगह बैठ रहे हैं, रिसर्च कर रहे हैं. ये हर एक सेंटर पे हुआ है इंडिया के. अगर हमको नीचे से ही अलर्ट होता था कि हाँ भाई तुम्हारा कंप्यूटर ये है, तुम यहाँ पे जाओ वहां बैठो, तो ये होता ही नहीं था सर. ये कमिटी की मतलब गलती सर उनकी. ये साधना पारस्कर मैम को सब बैन करना चाहिए सर. हाँ सर, अभी सर 2-3 महीने पहले ही सर CSR का नेट का भी एग्जाम हुआ था, उसमें भी ऐसा मास कॉपी सब हुआ था सर. तो CSR नेट वाले बच्चे बहुत सेंसिटिव थे, उन्होंने भी कुछ एक्शन लिया था, पर कुछ फीडबैक वो नहीं है सर. उनका रिजल्ट भी ऐसा, और इनफैक्ट 2 दिन पहले आवाज नहीं आ रही. हेलो हेलो सर. हेलो. हाँ बोलो. आवाज आ रही मेरी? हाँ आ रही सर, आ रही. हाँ, आकाश वर्मा बात कर रहा हूँ मैं. और अभी काफी सारे लोगों ने इस बारे में बात करी है कि सेंटर्स को सेलेक्टिवली चूज करना, उसके बाद वहाँ पे ब्लैक लिस्टिंग करना वो पॉसिबल नहीं है, क्योंकि 80 से 90% चीज हुई है. द ओनली वे विच इज देयर इज टू रिकंडक्ट एग्जाम. और क्योंकि ये 3 साल से हुआ हो रहा है, सीमैट एग्जाम में भी ये साल चीज हुई है. मैं एक फॉर्म जनरेट कर रहा था जहाँ पे मेरे पास काफी सारे सेंटर्स के नाम पड़े हुए जहाँ पे चीज हुई है अलग अलग मीन्स के थ्रू. एंड आई नोटिस कि वो उसमें लगभग
80-85% स्टेट्स चुके हैं, कवर हो चुके हैं, जिसके बाद मैंने वीडियो भी बनाई थी यूट्यूब पे, मेनी स्टूडेंट्स नो भी है, आकाश वर्मा, ठीक है। तो उसके बाद काफी रिस्क आता है इस चीज को लेके कि एग्जाम रिकंडक्ट ही होगा, क्योंकि सेंटर्स सिलेक्टिव यूज करना वो चीज फिर क्या होगा उस केस में, जो बाकी एग्जाम्स है नाइपर, आईसीटी, बिटसैट, वो डिले होंगे, क्योंकि सेंटर्स पे एक एक सेंटर्स पे क्वेरी करना, फिर वहां से भी रिस्पॉन्स आएगा, ये बहुत लंबा रिस्पॉन्स चला जाएगा। तो अभी जो बन सकता है वो रिकंडक्ट ही बन सकता है, और जिस स्टूडेंट तैयारी कर रखी है वो अभी एग्जाम दे देगा हफ्ते के अंदर, ठीक है। और चीज ये है कि जो लोग चाह रहे कि एग्जाम ना हो या फिर तो आप एग्जाम मत दे रहे, क्योंकि जिसने मेहनत करी वो डिजर्व करता है, क्योंकि 4000 सीट है, 50,000 फॉर्म्स भरे जाते हैं और 4000 सीट्स हैं, उस पे हक बनता है उस बंदे का जो पढ़ाई की है 1 साल 2 साल। सर आपकी आवाज ब्रेक हो रही जो हक बनता है उस पे आप सर नहीं पूछ सकते कि आप एग्जाम मत दो, मत करवाओ। तो प्लीज मेक श्योर कि वो चीज होनी चाहिए। उसके लिए जितनी भी अथॉरिटीज हैं, हमने ईमेल करे, हमने ट्विटर पे भी डाला, क्योंकि इसको वायरल करना बहुत जरूरी है, और इसके अंदर हमें मेक श्योर करना है कि जितनी सारी अथॉरिटीज को इंक्लूजन में ला सकते हैं, हमें कोशिश करनी कि हम लाएं, ताकि ज्यादा से ज्यादा इम्पैक्ट पड़ेगा। और जैसे कि ऋषिकेश सर ने बोला, बिल्कुल सही बात है, सारी अथॉरिटीज को इंक्लूड करना है और सबको इंक्लूड करके सबको ईमेल करना है। आई नो गाइस, सबने बहुत मेहनत करी है, और मैं बस यही बोलना चाहता हूँ कि 7-8 दिन पर मेहनत कर लो, ईमेल्स, कॉल्स, जितनी भी चीजें कर सकते हो, कहीं ना कहीं से रिस्पॉन्स आएगा, और जो रिस्पॉन्स आएगा फिर आपकी मेहनत सफल है। तो ये चीज मुझे बोली थी। आई वाज वेटिंग फॉर माय टर्न एंड ऑल द बेस्ट गाइस, एंड लेट्स डू इट, बिकॉज अभी टाइम है, अगर अभी नहीं करोगे तो कभी नहीं। अभी मेक श्योर भी करना है कि ये चीज आने वाले साल में कभी रिपीट ना हो। थैंक यू। मतलब इन शॉर्ट कंक्लूजन क्या है सर आपका, कि वी शुड डिमांड फॉर रिकंडक्टिंग एग्जाम और कैंसिल? एब्सोल्युटली एब्सोल्युटली, बिकॉज और कोई तरीका ही नहीं है। अगर हम एक एक सेलेक्टिवली जाते हैं, एक एक सेंटर्स को पकड़ते हैं, यहाँ वो करते हैं, सीसीटीवी दिखाओ, तो एग्जाम बहुत डिले हो जाएगा, और भी एग्जाम आने वाले हैं। हम किस किस कॉलेजेस को बोलेंगे कि आप अपना डिले करो क्योंकि हमारा रिजल्ट ही नहीं आया। तो एग्जाम का रिकंडक्ट होना वो भी विद इन 15 days या फिर 1 month, दिस इज द ओनली वे व्हिच कैन बी देयर। अगर हम सोचते हैं एक एग्जाम को सेंटर्स को पकड़े, उसके अगेंस्ट कंप्लीट होनी चाहिए, ताकि वो ब्लैकलिस्ट हो जाए और अगली बार से एग्जाम ना हो वहां पर। लेकिन अभी हमारे सामने यही है कि कंडक्ट कराया जाए एग्जाम को। और प्लीज, जैसा आपने सर मेंशन करा, आप प्लीज ईमेल्स और जितने भी आप कॉन्टैक्ट से प्लीज पास करिए। एक बार फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया, स्टेट काउंसिल ऑफ इंडिया, सबको पता लगता है, तो दे विल हैव देयर इनपुट्स इन दिस एंड वी कैन टेक ग्रेटर एक्शंस। I am already in connect with the PCI, sir. Don't worry about that. And you also try on your own basis to. Yeah, sir, I'm talking. Actually, I'm a student of Naipar Mohalli. I'm pursuing pharmaceutical management here. तो मैं नाइपर में बात कर रहा हूँ इस चीज से रिगार्डिंग। Yes, sir. That's great, sir. Thank you. Yes, yes. सर Hope. हाँ, yes, yes. बोलो। सर अभी एग्जाम हुआ था ना, ये फिर से रिकंडक्ट करने 30 दिन तो लगेगा। हाँ, उस टाइम पे यूनिवर्सिटी एग्जाम्स और वगैरह रहेगी, नाइपर के प्रिपरेशन के लिए पूरा टाइम बर्बाद हो जाएगा। ये देखो, ये चीज मैं समझाना चाहता हूँ आपसे कि जीपैट अगर कोई भी एग्जाम लेता है, तो कोई भी नेशनल टेस्टिंग एजेंसी जब भी एग्जाम लेती है ना, तो आपके एग्जाम के शेड्यूल के हिसाब से ही लेंगे। आपके सेमेस्टर एग्जाम्स पे उसका कोई भी इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा। और दूसरी बात यह है कि अगर नाइपर एग्जाम का डेट डिक्लेयर हुआ है तो वो डिले भी कर सकते हैं, मतलब जीपैट के बाद भी हो सकता है और जीपैट के पहले भी हो सकता है। सो डोंट वरी अबाउट दैट। आपको स्टडी पे फोकस करना है, आपको किसी को भी माइंड डाइवर्ट नहीं करना है। मैं जो बोल रहा हूँ बस आपको ईमेल करना है, उतना ही करने का। आपको बस इतना अवेयरनेस करना है, और सिर्फ ईमेल्स, सोशल मीडिया पे आपको काम करना है। आपको किसी को भी नहीं बोल रहा मैं कि रास्ते पे उतरो, और आपका खुद का माइंड एकदम पीसफुल चाहिए। डिस्टर्बिंग, नो डिस्टर्बेंस। आप पढ़ाई करते रहो, आप खुद का माइंड डिस्टर्ब मत करो। साइकोलॉजिकली आप एकदम साइलेंटली रहो, ठीक है? क्योंकि ये जो इशू है, ये इशू अगर आपने आपके दिमाग में लिया तो आपकी पढ़ाई भी नहीं होगी। और अगर एग्जाम नहीं हुआ, रिकंडक्ट नहीं हुआ, तो और अगर रिकंडक्ट हुआ एग्जाम तो आपकी पढ़ाई कम हो जाएगी, रिवीजन कम हो गए। और नहीं हुआ तो मतलब
रिकंडक्ट हुआ तो आपकी रिवीजन कम पड़ेगी, अगर नहीं हुआ तो आपके जो नाइपर के एग्जाम है उसका ऊपर का फोकस भी आपका कम हो जाएगा। इसलिए आप ये सब चीज को इतना सीरियस माइंड में मत बिठाओ। बस हम जो बोल रहे हैं मैं गाइड करूंगा, या कुछ तो भी लीडर्स है अपने चैनल पे, वो भी आपको गाइड करेंगे। ये अभी फार्मा माइंड्स के सर जो है दिनेश सर, उन्होंने भी जैसा बोला है, हम हम करेंगे, हम रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते हो, तुम टेंशन मत लो। तुम स्टूडेंट्स बच्चों पढ़ाई करते जाओ, और जो हम बोलते हैं, जो मैसेज हम करने को बोलते हैं, जिन लोगों को आपको मिलना है, आप बस थोड़ा सा वक्त निकालिए, 1 घंटा निकालो बस, बाकी कुछ भी मत निकालो, बाकी पूरा टाइम आप पढ़ाई करो। मेरा बस यही कहना है। और कोई भी किसी के भी साथ इनजस्टिस नहीं होना चाहिए, हमको इसी माइंड से चलना है, क्योंकि अभी अगर इनजस्टिस हुआ है तो आगे भी चलकर इनजस्टिस हो सकता है। तो ये चीज को ध्यान में रखो। तो कोई भी किसी की भी मेरे को नाराजी नहीं चाहिए, मतलब कि कैंसिल हुआ ऐसा वैसा, किसी को भी पैनिक नहीं होना है। आपको बस मोटिवेटेड रहना है। जो भी हो, जिस भी चीज के लिए कोई भी युद्ध आगे आए, कोई भी फाइट हो गई, उसके लिए हम तैयार हैं। हम हमेशा तैयार रहेंगे। हमेशा युद्ध के लिए तैयार होना फार्मासिस्ट के लिए अच्छी बात होगी। ठीक है, मतलब मेरा मतलब आप समझ सकते हो। मैं ज्यादा हिंदी में फ्लुएंसी ज्यादा नहीं है, लेकिन आप मेरी बात आपके आपके पास आपके साथ है। और तुम टेंशन मत लो, मैं आई विल डेफिनेटली कोऑर्डिनेट टू मेन अथॉरिटीज, एंड यू आल्सो कोऑर्डिनेट टू योर मेन अथॉरिटीज। I will send within half hour the draft and the email IDs of those conducting authorities, and you also suggest to the emails and the authorities also. Suggestions always welcome, opinions also always welcome. Okay. I hope you all get Sir, my point. Yes. Yeah, sir, we can understand. Sir, कितना % चांसेस है कि रिकंडक्ट होगा? सर चांसेस अभी तो नहीं बता सकते। अभी हमारा मिशन ये है कि इनके पास हमारी आवाज पहुंचनी चाहिए। ठीक है, और ये या सर ऑलमोस्ट स्टूडेंट ने तो मेल कर दिया है एनटीओ को। फिर से करेंगे? मेल करने से कुछ नहीं होगा। आप ट्विटर पे ट्वीट करो, ज्यादा ज्यादा ट्वीट करोगे तो अपनी आवाज पहुंचेगी एनटीए के पास। मेल करने से ज्यादा अच्छा ट्वीट करो ट्विटर पे। जितने ज्यादा ट्वीट करेंगे उतने ज्यादा आवाज पहुंचेगी एनटीए के पास, क्योंकि हैशटैग जो रहते हैं वो जल्दी ट्रेंड करते हैं। तो आप लोग ट्विटर पे ज्यादा ट्वीट करें तो ज्यादा सही रहेगा मेल से। यस कोई बात नहीं। और आपकी जो प्रॉब्लम हुई है एग्जाम में, वो हर सब कुछ टाइप करके आप एनटीए को टैग करें ट्विटर पे, तो ज्यादा सही रहेगा मेल से। मेल को इतना ज्यादा प्रेफरेंस नहीं दी जाती। अब आप सभी लोगों ने सब कुछ बता दिया अपना पर, लेकिन हम सबको याद नहीं रहता कि कहाँ पे प्रॉब्लम हुई है। तो आप सभी लोग अपनी अपनी प्रॉब्लम लिख के सेंड करेंगे, अपने सेंटर बताएंगे, तो आवाज पहुंचेगी एनटीए के पास। तब वो हैशटैग ज्यादा देखेंगे और सोशल मीडिया पे वायरल होगा वो हैशटैग, न्यूज में आएगा, फिर मीडिया में आएगा, तो ज्यादा जल्दी सक्सेस होगी। जैसे मेल करेंगे तो मेल तो आजकल ज्यादा प्रेफरेंस दी नहीं जाती मेल को, तो हैशटैग ज्यादा ट्रेंड करते हैं। जितनी जल्दी ट्वीट करोगे जितने ज्यादा लोग, उतना ज्यादा बेनिफिट रहेगा आपके लिए। और सभी लोग अपना अपना प्रॉब्लम लिखो और सेंटर नंबर लिखो, सेंटर नेम लिखो, अपना प्लेस लिखो, सारा डिटेल लिख के ट्वीट करो ट्विटर पे। विकास सर, और मेल भी करते जाओ तभी होगा। और रिकंडक्ट होना पॉसिबल नहीं, क्योंकि रिकंडक्ट होगा तो फिर नाइपर डिले हो जाएगा और फिर एडमिशन में डिले होते आएंगे, सारा प्रोसेस जो है डिले होता जाएगा। तो ये रहेगा कि अगले टाइम से एनटीए ध्यान रखेगा कि ऐसी गलती ना हो। और मेन बात ये रहती है कि वहाँ पे सीसीटीवी कैमरे लगे रहते हैं एग्जाम सेंटर पे, तो उसकी इंक्वायरी की जाए कि सीसीटीवी कैमरे को चेक किए जाएं, और सीसीटीवी कैमरे प्रॉपर वर्क नहीं कर रहे हैं तो वो क्यों नहीं कर रहे हैं, ये एनटीए की रिस्पांसिबिलिटी रहती है कि सब कुछ मेंटेन करके। देयर वाज नो सीसीटीवी कैमरा एट माय सेंटर। हेलो सर, हेलो। मैंने आज कॉल किया था सर एनटीए को, तो मैंने पूछा कि आंसर की कब तक आएगी, तो आंसर की उन्होंने बोला कि 2-3 दिनों में आ जाएगी सर। और मेरे फ्रेंड ने भी किया था, उनको भी वैसा ही बोला। तो जो भी हम एक्शन ले रहे हैं ना सर, विदिन 2 to 3 डेज लेना होगा सर। इमीडिएट एक्शन होगा, आज ही के दिन एक्शन करेंगे हम। डोंट वरी अबाउट दैट। एक्शन लेना इम्पोर्टेंट है। आगे क्या होगा क्या नहीं होगा इसका कुछ भी मत सोचो। एग्जाम होगी ना होगी ऐसा कुछ मत सोचो। आंसर की भी आएगी, रिजल्ट भी आएगा, कुछ भी हो जाए,
हमारा अभी विषय एग्जाम यही है। रिकंडक्ट ना भी हो फिर भी अगर जिन्होंने चीटिंग किया उनका एग्जाम कैंसिल करना जरूरी है सर। हाँ डेफिनेटली हम उनको इन्फॉर्म करेंगे सर। वो Yes, फाइनल sir. अथॉरिटी है, एनटीए अथॉरिटी विल टेक डिसीजन, वी विल नॉट टेक डिसीजन, वी जस्ट इन्फॉर्मिंग देम एंड प्रेशराइजिंग देम सर। मतलब हमको सिर्फ आगे चल के ये चीजें नहीं होना चाहिए, और आपको उनको डिसीजन लेना ही पड़ेगा इस चीज पे, या तो फिर रिकंडक्ट एग्जाम या तो फिर वो सेंटर पे कार्रवाई, कुछ ना कुछ तो वही होना चाहिए। आप उसका टेंशन मत लो कि ये कब होगा, ऐसा होगा क्या, रिकंडक्ट होगा कि नहीं। हम ऐसे अब ये टाइम पे हम कुछ भी नहीं बता सकते क्योंकि फाइनल डिसीजन टेकिंग अथॉरिटी एनटीए है। ठीक है, आई होप यू सर ऑल यस यस सर मेरे दोस्त के सेंटर में भी वैसा ही हुआ था। उन्होंने आखिर के आधे एक घंटे में मोबाइल यूज किया, प्लस उन्होंने सेल्फी स्नैप वगैरह सब कुछ चल रहा था, मतलब उनका आखिरी एक घंटे में। if you have proofs then please send me, and please send on group also. Anyone any proof, please send on group, we will tag them on Twitter, email also. Okay, just don't worry about that. ओके Can सर। we conclude this स्नैप्स meeting? वगैरह उन्होंने निकाले थे, मैं देखता हूँ अगर उनके पास होगा तो। लेकिन आपको युद्ध के लिए तैयार रहना होगा। ठीक है, आपकी पढ़ाई में आपका मतलब डाइवर्जन नहीं आना चाहिए। ठीक है, आपको स्टेबल कूल माइंडेड रहना है बस। ओके, सिर्फ सपोर्ट करना है। सर मेरे सेंटर पे पीसी वर्क नहीं कर रहा था ठीक से, और रफ शीट भी मुझे 10 मिनट लेट मिला था। yes I understand sir, same common problems are showing there. सर एटलीस्ट उन्हें 3 आवर तो बैठने देना चाहिए, वहाँ 3 आवर बैठने भी नहीं दिए। खुद अपने आप आके वो सबमिट कर दिए, बोले कि अकेले नहीं दे सकते पेपर। yes we get your point. सर मेरे साथ भी ये हुआ है, वो टाइम पर आके बोलते हैं कि मतलब बाकी बच्चों का हो गया है, अब आप भी उठो, आप क्या कर रहे हो, आप भी उठो। सर प्रॉपर माउस काम नहीं कर रहा था। मैं उनसे बोला कि सर ये क्यों नहीं काम कर रहा, मुझे डायरेक्ट सब्जेक्ट पे जाना है। वो बोले कि सबमिट करो, बस अपना हाथ से सबमिट कर दिए वो आगे। बहुत गलत किया ये। yes don't worry sir, we will ये भी पॉइंट हम सर सर्वर काम नहीं कर रहे थे, बहुत नेटवर्क का इशू था, सर्वर बिल्कुल काम नहीं कर रहे थे कंप्यूटर। सर ऐसे सेंटर को तो मतलब वो कर देना चाहिए, पनिशमेंट मिलना चाहिए सर, बहुत ये बहुत जरूरी। yes punishment मिलना ही चाहिए। सोनिया Rishikesh, yes, I have a point that the students which suffered from this issue, we have to collect the information of GPAT roll number and their name, and we should inform the NTA and higher authorities to do a favor for the students. Definitely, we will draft yeah, I have already drafted an email and I have shared with you. Just go through it and let me know if any corrections are there, and if any points to be added, I will add it, and we will do something for it. Definitely yes. Thank you very much everyone. We will be in stay connected, and please support every movement, everything which I will suggest you, guide you. Don't worry about that, and just stay calm and focus on your study also. Okay, thank you all of you. जिएंगे तो और भी लड़ेंगे। All the best. And to each and every student, I request to keep your mind calm. Please practice at least 10 minutes of pranayama and meditation. It will help you to increase your focus in your studies. Yes. Thank you very much. Thank you. Can we conclude this? Yes. Okay. Thank you, sir. Thank you, sir. Thank you, sir.